श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 12th chapter, which is called The Birth of Emperor Parikshit. And आज हम लोग पढ़ेंगे verse number 27. तद तक्षदाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपस्त्यस्त उपाश्रुत्य मुक्तसंगः पदम हरे तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपस्त्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदम हरे तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यत् उपसृत्य मुक्तसङ्गः पदं हरे. Somebody wants to read the translation as well, I can read, Prabhuji. Hare Krishna. please. After hearing about his death, which will be caused by the bite of a snake bird sent by a son of a Brahmana, he will get himself freed from all material attachment and surrender unto the personality of Godhead, taking shelter of him. Purport. Material attachment and taking shelter of the lotus feet of the Lord go ill together. Material attachment means ignorance of transcendental happiness under the shelter of the Lord. Devotional service to the Lord while existing in the material world is a way to practice one's transcendental relation with the Lord. And when it is matured, one gets completely free from all material attachment and becomes competent to go back home, back to Godhead. Maharaja Parikshit, being especially attached to the Lord from the beginning of his body in the womb of his mother, was continuously under the shelter of the Lord, and the so called warning of his death within 7 days from the date of the curse by the Brahmana's son was a boon to him to enable him to prepare himself to go back home, back to Godhead. Since he was always protected by the Lord, he could have avoided the effect of such a curse by the grace of the Lord. But he did not take such undue advantage for nothing. Rather, he made the best use of a bad bargain. For 7 days continuously, he heard Srimad Bhagavatam from the right source, and thus he got shelter at the lotus feet of the Lord by that opportunity. Hare Krishna. Beautiful. What an amazing short purport. But now this verse has a lot of things that we're gonna go through today. Yeah? So we're gonna have few parts in it. The first part we will talk about um, is death is not the end. You know. So and then we will go to the next one is the curse that he took as a blessing. You know, it's very weird when you say curse is a blessing. Then the third one we'll talk about is Mukta Sangha. है ना मुक्त संगा ये वाला वर्स है ना मुक्त संगा we'll talk about what does it mean मुक्त संगा which is you technically it means letting go and then
we will talk about the Padam Hare. We will talk about this Padam Hare. Padam Hare in, we are actually taking the shelter of the lotus feet of the Lord, you know. And then we will talk about it. When then the last part will be, what does it mean to us as people who are listening to this Bhagavatam, who are reading this Bhagavatam, who are actually trying to maneuver this quagmire of life through the words from Shrimad Bhagavatam. How do we do it? We'll talk about it at the end. And then we will concentrate on making the best use of the bad bargain. As Srila Prabhupada writes, incredible, he made the best use of a bad bargain. So we'll talk about that. And then we'll conclude it, what is the real message, So we'll talk about death is not our enemy. We'll talk about letting go of material attachment. We'll talk about taking shelter, full shelter. And then how do we take full shelter? Hear Bhagavatam daily and live like Parikshit Maharaj. So that would be our message for today. So let's start off with setting up the stage where what's happening. What's happening is we're trying to learn about Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit has been cursed to die in 7 days. Now, what happened? We all know the background of the story, and both Mitul Prabhu and Nam Sankirtan Prabhu has touched on this as well. But what happened is Parikshit Maharaj was thirsty and hungry. We call it hangry. So what he did is he went to the Shamik Rishi's ashram and he wanted some water. Shamik Rishi was in a trance, so he didn't receive him, and he got a little bewildered. Maharaj Parikshit, what he did is he said, "You did not offer me a garland to welcome me. I'll offer you a garland." And he looked at a dead snake on the side and he put it around his neck and he left. And when he was walking back, he was thinking, "What did I do?" He was like, he had no idea what he did. And then he was like, "My goodness, I'm the emperor of the whole world, and I don't know why I did that." And he instantly remembers that this is not in my nature. I am fully self-controlled person. A thirst and a hunger is not gonna change who I am. So something must have happened. And then he found out that, Shringi, who was the son of Shamik Rishi, gave him a curse. You know, I don't know whether you know, but when Shringi actually spoke about Maharaj Parikshit, he used very foul language, like really foul language, to a point he called him a dog, and who forgot his position and all those sort of things, like really, really bad. He just insulted him. And then what he did is he said, they don't know what Brahmana can do. I'm gonna curse him to die in 7 days. And then obviously Maharaj Parikshit came to know that he's going to die in 7 days. And as soon as he found out that he's going to die in 7 days, takshadadatmano mrityum, सीधा ही है ना, because he know that he's gonna get die, है ना. द्विज पुत्रोपसर्जिता, द्विज पुत्र मतलब द्विज, द्विज का यहाँ जो द्विज है, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण. द्विज का ब्राह्मण कौन सा? शमिक ऋषि. उनका उसके पुत्र का क्या नाम था? श्रृंगी. द्विज पुत्रो उपसर्जिता, उसने क्या भेजा? इस अपसर्जित का मतलब होता है भेजा. क्या भेजा? तक्षक को, है ना. प्रपस्तस्य उपश्रुत्य, फिर क्या करा उन्होंने? किसका आश्रय ले लिया? मुक्त संग पदम हरे. Amazing, like this. That's why is a beauty of Srimad Bhagavatam is it has answer for all sort of situations, and the way it is written is incredible. So what happened is Maharaj Parikshit realized that the reason why I was bewildered at Shamik Rishi is because this must be a work of Lord. So what he did is he got cursed to die in 7 days. He did not throw a tantrum. Usually we throw a tantrum ना, मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, the nobody likes me, why me, somebody, why don't I get this promotion, why everyone else is happy with their you know um,
Why is everyone else has no mother-in-law? Why do I have mother-in-law? Like, things like that. So people get really upset that why me, But if you look at Prahlad Maharaj, he he decided as soon as he found out that he got cursed, he actually straight away he left the kingdom. He left everything. He left the whole kingdom. He was king of the whole world. He was not a sarpanch of a small gaon, that apni padvi chhod di, he was a king of the whole planet. He left everything. He left his family. He left all the opulence, put you know saffron, or I don't know whether he was wearing saffron or something, but he changed his clothes to simple attire, went to the uh, river, next to the river, and he sat down and started meditating on Krishna. Like, he straight away he did it. He renounces his kingdom, every comfort. अगर जैसे for example, अगर हम लोगों को पता चल जाए that we're gonna die in 7 days, हम लोग क्या करेंगे? First of all, we'll make a bucket list. You know, let's go to India. Let's have that bhel puri. Let's have that, Delhi ka lacha paratha and all those sort of things. Maybe, maybe we'll cry. Maybe we'll set a bargain with Krishna. Krishna, मुझे क्यों उठा रहे हो? वो देखो मेरा दोस्त कितना खराब काम कर रहा है, उसको ले जाओ मेरी जगह. Like, we'll try and do everything to get out of that situation, because we don't understand that situation. Parishit Maharaj, on the other hand, he was a true devotee, because he looked at death not as an end. हम लोग क्या सोचते हैं? Because we are attached to our body, we are attached to our relations, we are attached to our money, name, fame, adoration, all those things, we are attached to it. We get attached, and that's why we look at death as end of all of this, because it is the end of all of this. But for a Parikshit Maharaj, for someone like Parikshit Maharaj, he was not attached to any of that. For him, it was a chance to fully surrender to Krishna. Okay, all my material responsibility was attached to this body. This body is gonna die in 7 days. That means I will have no more responsibility except for serving Krishna. So he actually gives. So true devotees do not fear death. They they step on the head of the death to go to salvation. There was a story of Maharaj Khatwanga, है ना? Khatwanga Maharaj ने क्या करा? He was fighting from the side of the demigods, and he was very very amazing. So demigod ने उनको बोला, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो. And Khatwanga Maharaj said, I want to know मैं कितने how long do I have to live? मेरा कितनी जीवन बचा है? I mean ये भी बोल सकते थे कि यार, खटवंग महाराज बोलते हैं, यार, कैन यू गेट मी टेक मी टू स्वर्गलोका, योर डेमिगॉड्स, या मेरे को थोड़ा सा इंद्र के बाजू वाली चेयर दे दो, है ना? ऐसे कुछ भी बोल सकते थे. उन्होंने क्या पूछा? हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू लिव? एंड दे टोल्ड हिम जस्ट अ मोमेंट. एंड इफ एनीवन एल्स, कोई होता, बोले, हट, ये क्या कर रहे हो? अभी अभी मैंने तुम लोगों को जिताया, यू टॉकिंग टू मी कि मैं अभी मर जाऊंगा मैं. तो उन्होंने ऐसे नहीं करा. एज सुन एज ही रियलाइज जस्ट अ मोमेंट, व्हाट ही डिड? ही एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन एंड सरेंडर टू द लॉर्ड immediately, and he fully surrendered to Krishna. So time is not the issue when it comes to surrender. It's the intent. अगर आपके पास एक मोमेंट है या लाइफ टाइम है, if you are a 5 year old boy or a girl, or if you are, you know 80, 89 years old, doesn't matter, or 100-year old, it's not an issue. The intent is an issue. What matters is, are you using it to turn to Lord? If you are not, then doesn't matter what age you are, doesn't matter how long you have. Shramaha eva hi kevalam. Useless waste of time. If we do anything other than having surrender to something else, then it's useless waste of time. There was a person that I know in Melbourne. I think Melbourne. Yeah, he was in Melbourne for a little bit, and then what happened is, he was talking to someone. He found out that ऐसे like, somebody was looking at his horoscope or something, and he said, look, you don't have long life, like, probably another 10 15 years you have, ऐसे बोला. तो
यूजुअली अगर कोई ऐसा सुनता है तो you'll see people getting pale कि यार क्या बोल दिया यार, why even if he is a joke, why you saying that? You know what he did? As soon as he found out, you know what he did? He became really happy, left everything, joined the brahmachari ashram, lived as a brahmachari for 10-15 years, and and I mean, I think um, I don't know whether he is still there or not. He's not in Melbourne, obviously, but he's in some country in Europe. But whether what is he there now? I don't know. But what happened is that one day when he was told that he got a few years to live, 15 years to live, he just that changed his. ओके, और भी कुछ कर सकता था, तुरंत टिकट कटा के इंडिया चला जाता, आई वांट टू लिव द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद माय फैमिली, नन ऑफ दैट. He surrendered immediately. you know. And where does it come from? Where does it come from? It comes from the understanding that my life is not just this body and this relationship which is related to this body. You know. So, and that's what he's doing. He started doing, like, when he joined the ashram, he was doing 32 rounds a day and things like that. He was every day from morning to night, seva, 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 seva. He will just go to bed and he will sleep in like 10 seconds, and he will he will get up early and start doing seva again, 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 again. So that's the contemporary of Parikshit Maharaj. Yes, Yeshi Mataji. You have a So question? really sorry to interrupt. Yes. No, no, please, please. Actually, I would like to know कि who will tell us कि कितना time बचा है? No, वो no, no. कहाँ It's मिलेंगे ऐसे? नहीं नहीं, that's a very good question. हमें देखो, the context, the reason, the whole underlining thing of this is that we actually don't know how much do we have, and that is why it becomes critical, है ना, हमारे लिए. We should live our life as if we have very small amount of time, very very small amount of time. कटवांगा महाराज जैसा एटीट्यूड होना चाहिए हमारे पास. वी डोंट नो हमारे पास नेक्स्ट सेकंड है कि नहीं है. आई गॉट एन आर्टरी ब्लॉकेज ऑफ अराउंड 20 to 50%, वन. एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, no one knows tomorrow we will be able to see each other, or we have no idea. So idea is not कि हम कहाँ से पता करें. Idea is कि अब हमें ये नॉलेज है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम है. सो वट एवर इज टूडे, वी शुड थिंक दैट टूडे इज द लास्ट डे दैट आई हैव. एंड व्हाट वी शुड डू इज, हमें कभी कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए कि यार चलो ठीक है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है दोस्तों, जब जब जीना है बरसों. सम पीपल थिंक लाइक दैट. So we should think about, nobody will be telling us this. We should think that I just have. So abhi is class ke baad, one of the call for action that I have written down is, think about if you have 7 days, what are the things that you would want to do. पता है उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें पता चलेगा हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ है. No, there, what happened, Yeshi Mataji, there was I think I've Yes. discussed this before. There was this person was really worried that अगर मैं चला गया, है ना, तो मेरे घर वालों का क्या होगा, है ना. और उसने बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता अभी. तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बोले नहीं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, सब कुछ मेरे से ही चल रहा है. तो उन्होंने बोला, साधु ने बोला, ये तुम नहीं चला रहे हो, भगवान चला रहे हैं. तो कहते तो भगवान करेंगे क्या मेरा ये सारा? तो बोले, तुम्हारे रहने ना रहने से तुम्हारे घर वालों को मिलेगा नहीं मिलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब तुम्हारे घर वालों को मिलेगा ही मिलेगा, वो तुम्हारे कर्मों पे जी नहीं रहे हैं, वो अपने कर्मों पे जी रहे हैं. तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं मानता. तो उन्होंने क्या करा, अपनी माया से उनको, उनका एक शरीर क्रिएट करा जो मर गया था, मृत था, है ना. लोगों ने खूब रोए धोए, वो अपने साथ में रखा, साधु ने उनको छुपा के. फिर देखा कि थोड़े जैसे ही थोड़े एक जैसे ही 13वीं हुई उनकी, उनके बेटे को सरपंच ने बुला के एक जॉब दे दी, है ना. वो खेती बाड़ी का, वो कि तू संभाल इसको, कि सिंचाई नहीं हो रही है, कैसे करना है. उसका दिमाग अच्छा था. ही स्टार्टेड में वर्किंग, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी देन हिज फादर. हिज फैमिली वॉज एक्चुअली फ्लरिशिंग.
more than when he was there. And थोड़े दिनों बाद, everybody was okay. They would think of him, become sad, but life goes on. And after probably 3 months of doing this, the sadhu told him, "Look, your presence there, you think you are the doer, लेकिन जिसको दाना देना होता है ना, भगवान उसको देता ही है." And that's the reason one of the call for action for today is think about, अगर आपके पास सिर्फ 1 साल है, suppose, एक साल, it's too less, 1 साल. Let's say if you have 7 years to live, how would you want to live those 7 years? Trust me, if we can write down these things, it will make a lot of difference. है. So, and the next part that we're going to talk about is how is this curse was a blessing. है ना. अब जो मटेरियलिस्टिक होता है, बिकॉज मैंने बताया कि वी लुक एट आवर बॉडी एज द अल्टीमेट गोल. सो क्या होता है, इस जैसे ही बॉडी गई, हमें लगा मैं कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना पैसा भी साथ में ले जा सकता, रुतबा भी साथ में नहीं ले जा सकता, नथिंग. After 2 generation, nobody will know my name even. I don't know my great grandfather's name. I don't even know where he was born. I have no idea. नाम ही नहीं पता है, तो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या थे, आई हैव नो आइडिया. है ना. हमारे साथ भी ऐसे ही होने वाला है. सो मटीरियलिस्ट जो होता है, वो कॉज ऑफ डेथ को क्या सोचता है, इट्स एन अल्टीमेट डिफीट. बट फॉर अ डिवोटी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक होम, गेट टू गॉड हेड. क्योंकि हमें किसने बांध रखा है, इस बॉडी ने बांध रखा है, हमारे कर्मों ने बांध रखा है ना. So that's why the so-called warning, where did Srila Prabhupada say, and the so-called warning of his death with 7 days from the date of the curse of Brahmana was a boon to him. Why was he boon? Because he can go back home, back to Godhead. It's not a curse, it's a boon. है ना. क्योंकि ही हमें क्या समझना चाहिए, कृष्णा नेवर मेक्स मिस्टेक्स. अगर कृष्णा ने महाराज परीक्षित के लिए तक्षक को वो करने की कोशिश बोल दिया है, तो महाराज परीक्षित ने बोला, यार भगवान तो करते नहीं गलती, जो भी है, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के. है ना. सो नाउ इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, परीक्षित महाराज गोज, how do I use this to remember Krishna more deeply? That's it. This is the switch that we have to make. Why did this happen to, why is this happening to me? Instead of that, how can I use this to remember Krishna? For example, if someone had a breakup with their loved one, you know, how can I use this time, instead of saying मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, how can I use this to remember Krishna more deeply? For example, if I have financial crunch, how can I use this situation to remember Krishna more deeply? If I lost my job, if I have issues happening in my relationship, what can I use? How can I use this opportunity to remember Krishna more deeply? How can I go lean into more of his mercy? Bhishma Dev, he was lying on the bed of arrows. लेकिन जब तक भगवान के दर्शन करके भगवान को अपना हार्ट सरेंडर उनके फेस टू फेस नहीं कर दिया, तब तक उन्होंने अपनी जान नहीं छोड़ी. ही वॉज इन सो मच पेन, but because Krishna was present in there, it became his blessing. I remember my dad passed away na 2014, and उसी समय ना भक्ति रक्षा ज्वाइन करा था मैंने. एंड आई रिमेम्बर थिंकिंग, मैं पब में खड़ा था, एंड वी वर टॉकिंग ऐसे ही. तो मैं, वो मुझसे पूछा था, डू यू मिस योर डैड. मैंने कहा हाँ यार, आई डू. मैंने कहा आई हैव नेवर डन एनीथिंग फॉर माई फादर, लाइक लिटरली देर इज नो सेवा दैट आई हैव डन फॉर हिम. देर इज नथिंग दैट आई हैव डन to make him proud or anything like that. At least I didn't think I did. Then I said, I want to do something for him. And then I thought came into my mind. I was in a very, like, lot of pain to lose my dad. है ना? Then I thought, I want to do something for my dad. What can I do? What will please him? अगर वो मुझे देख रहे हैं अभी, what will please him? Then I had a alcohol glass in my hand. मैंने कहा, he would really like it if I don't drink. है ना? So what I did is I took a vow that day that I'm not gonna drink for 3 months.
just to give pleasure to my dad. It was a difficult situation. It was a it was a it was actually very traumatic for me. But that curse of losing my father became my blessing because I stopped drinking. And you know what? When you stop drinking, one of the things that happens is इंटॉक्सिकेशन बंद करने के बाद स्पिरिचुअल एसेंस जो होता है वो समझ में आना थोड़ा सा आसान हो जाता है. एंड बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दैट कर्स, it became my biggest blessing because I got deep into Krishna consciousness during that time. And today, with the mercy of the Lord and with the blessing of the devotees, we are organizing bhakti vrakshas and classes and all of those things, this Bhagavatam class, these kind of things are happening because why? Because of that curse that has happened. And I've thought of lot कि यार मेरे साथ how, like, why did that happen to me, like, यार I didn't get to see my dad much, उनसे ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाया, why did it happen to me? But what happened is, instead of thinking why is it happening to me, what can I do to right now to go have a deeper connection with Krishna? So now if I'm in a difficulty, if I'm going through a very tough time, which usually happens because we are in Dukhalaya Shashwatam, I think like that. कि क्या है, like what is it like if I have a very strong argument with my boss or with my wife or even sometimes my son, then I think what is Krishna trying to teach me here? What can I do to lean into more in Krishna and his blessings? And one of the things, one of the verse tell us the truth that hurts and heals. What does it say? um, Material attachment and taking shelter of lotus feet of Lord go ill together. साफ साफ लिखा है, देर इज नो कंफ्यूजन नहीं है इसमें. है ना? कोई कंफ्यूजन दिख रहा है इसमें? देर इज नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर. कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि हाँ, और हाँ, सॉरी सॉरी, सो एक और चीज मैं बताना भूल गया. जस्ट लुक एट माय नोट्स. हाँ, सो इट व्हाट इट डज इज, कर्सेस आर बैड. हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एक्चुअली केयर, दीज थिंग्स आर गेटिंग रिड ऑफ आर कर्मा. सो दे आर कर्मा इरेजर्स, है ना? एंड दैट्स व्हाई द थर्ड पार्ट, सो वंस वी गेट टू दैट, देन द थर्ड पार्ट कम्स विच इज कॉल्ड. क्योंकि हमने क्या करा, भगवान की शरण ले ली. वी हैव एन इशू, वी हैड ए इशू, हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, देन हमने भगवान की शरण ले ली, ऊपर शुद्ध है. देन व्हाट हैपेंस देन? नेक्स्ट वन इज मुक्त संग. मुक्त संग का क्या मतलब होता है? संगा का मीन होता है अटैचमेंट, है ना, कनेक्शन, इंटेंगलमेंट. एंड मुक्त का क्या मतलब होता है? फ्री. फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फ्री फ्रॉम कनेक्शन, फ्री फ्रॉम एंटेंगलमेंट. हम किस किस चीज़ से एंटेंगल्ड हैं? मनी से, रिलेशनशिप स्टेटस से. कई बार लोगों को लगता है कि हाउ पीपल इन माय यू नो समटाइम्स वी गेट टू अटैच टू, यार मेरी क्लासेस अच्छी हैं कि नहीं हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या, what is my impression? Doesn't matter what transformation I'm giving, what is my impression? That kind of entanglement. Even religious pride. Oh my goodness, I am religious person, I don't eat meat, I don't drink, I don't have alcohol, I don't even drink tea and coffee, no onion garlic, you know I'm paramhansa. Religious pride. Sometimes that these are all entanglements. But Parikshit Maharaj became Mukta Sangha, Mukta Sangha. And Mukta Sangha means he was not attached to any of those. Now, this did not happen due to force. ऐसा नहीं है परीक्षित महाराज ने बोला यार अब तो मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं है, वैसे ही 7 दिन में जाने वाला अभी छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करा उन्होंने. जैसे होता है ना, देर इज ए वर्स, आई डोंट नो वेदर, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को एक श्लोक सिखाया जाता था. I can't, what was the श्लोक? क्षमा नहीं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो. है ना? गरल का मतलब होता है जहर, भुजंग का मतलब होता है सांप. क्षमा शोभती, क्षमा मतलब फॉरगिवनेस,
उसी को सूट करती है, किसको? उस स्नेक को सूट करती है जिसके पास गरल है, जिसके पास वो है, जहर है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या थी? उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ना, जो सांप के दांत नहीं है, दंतहीन है, विष रहित है, जिसमें विष नहीं है, और विनीत है, बिल्कुल चुपचाप रहता है और एकदम किसी को काटता नहीं है, वो सांप जो किसी को काट ही नहीं सकता है, वो बोले मैंने माफ करा, तो दैट्स नॉट माफी, वो कुछ कर ही नहीं सकता। क्या होता है? वही सांप माफ करने की औकात रखता है जो पॉइजन से मारने की भी औकात रखता है। जब वो माफ करता है, दैट मीन्स माफी। शिला परीक्षित महाराज वॉज द किंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना? कहते हैं ना, द पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, इवन पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। तो हम लोगों के साथ क्या है? हमारे पास है कुछ नहीं, है ना, कुछ है नहीं, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि चाय से ज्यादा केटली गर्म है ना? तो अभी है कुछ नहीं, लेकिन दम बहुत भरते हैं कि ये है वो है। लेकिन परीक्षित महाराज के साथ कोई फोर्स नहीं था। परीक्षित महाराज हैड एवरीथिंग, एंड देन ही लेफ्ट इट, है ना? एंड दैट नॉट बाय फोर्स, बट बाय नॉट बाय नेग्लेक्ट एज वेल, but by understanding the value of shelter at the lotus feet of Lord, which is called Padam Hare, है ना? That is the beauty of this particular segment of the Bhagavatam. So, what does this verse tell us? It tells us the truth that really hurts, but it actually heals as well. कैसे? You cannot hold on to both material and spiritual. One will have to go. One will have to go. कई लोग बोलते हैं ना कि यार क्या फर्क पड़ता है, चैंटिंग तो कर ही रहे हैं, है ना, एक दो रेगुलेटरी प्रिंसिपल टूट जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, मंदिर जाए नहीं जाए क्या फर्क पड़ता है, किसी का बुरा थोड़े कर रहे हैं हम लोग ना। प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दिस दो नाव हैं, दो अलग अलग नाव हैं। इट्स लाइक नाव से अगर हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि हम नाव में ज्यादा जाते नहीं है, ठीक है? दो अलग अलग ट्रेन हैं, दो अलग अलग डेस्टिनेशन हैं, आप एक ही समय दो ट्रेन में कैसे बैठ सकते हो? इट डज नॉट गो टुगेदर, सिंपल एज दैट। And if you think it will go together, you're a fool. I mean, if we think, I'm talking about myself, we are fool if we think like that. So अजामिल के साथ क्या हुआ? अजामिल ब्राह्मणिकल लाइफ अपनी जी रहा था, उसने छोड़ दिया। He married to a prostitute, then he had raised sinful sons. But at the moment of death, when he saw Yamduta approaching, he called out to his son Narayan. Vishnuduta came. तो एक्सीडेंटली कांटेक्ट करा कृष्णा से, उसने भी लाइफ टाइम के अटैचमेंट को बंद कर दिया। तो आप सोचो, इफ आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस अटैचमेंट टू मटेरियल लाइफ कॉन्शियसली, देन व्हाई वुड इट वर्क? उन्होंने तो बिना सोचे समझे नारायण बोला है। हम बोल रहे हैं कि यार यू चैंट एवरी डे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में इसके अलावा कोई चांद तरीका ही नहीं है अपनी एंटेंगलमेंट को छोड़ने का। सो द रीजन व्हाई इट वाज इजियर फॉर परीक्षित महाराज, बिकॉज परीक्षित महाराज हैज रियलाइज दिस, what he's realized, that the holy name is the savior of everything. That's why and there is no difference between holy name and the Lord himself in his pastime. So he was listening to Shrimad Bhagavatam. He spent the rest of his life of 7 days listening to Shrimad Bhagavatam, है ना? शीला प्रभुपाद के साथ क्या हुआ? शीला प्रभुपाद, आप सोचो, इन इंडिया, शीला प्रभुपाद, all the prime minister, all the chief ministers, everybody knew Srila Prabhupada. He was writing letters to Morarji Desai. He was getting letters back, like, things like that. So he was such a powerful saint, and he was living in Radha Damodar temple in Vrindavan very peacefully, and everybody used to just bow down, lie down on the street for him. Very peacefully he could have lived, है ना? लेकिन उन्होंने क्या करा? He was not attached to that, even that comfort. गुरु महाराज ने बोला है वेस्ट में जाके प्रीच करना है, सब कुछ छोड़ के 70 की एज में निकल लिए, एंड दैट इज कॉल्ड मुक्त संगा। मुक्त संगा इन एक्शन, मुक्त संगा इन एक्शन। हाउ डिड ही डू दैट? पदम हरे, बिकॉज ही टुक द शेल्टर ऑफ श्रीमद भागवतम,
एंड ही टुक श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो विद हिम, यू नो। उनके ट्रंक में 2 जोड़ी कपड़े थे, उसके अलावा शिव बुक्स थी, है ना। अपना थोड़े से ओट्स लेके गए थे, उनको पता था वहाँ नॉन वेज मिलेगा, वेजिटेरियन मिले नहीं मिले, कितने दिन नहीं मिले, तो ही वॉज प्रिपेयर्ड, है ना। ना पदम हरे जो है, पदम हरे का क्या मतलब होता है? पदम हरे का मतलब होता है टेकिंग शेल्टर ऑफ लोटस फीट। बट ऐसा नहीं है कि लाइक इट्स नॉट ए बैकअप प्लान। हमारे साथ क्या है, कृष्णा इज आर बैकअप प्लान। पहले तो आई डू माई सेल्फ, I look at my wife, I look at my son, I look at my brothers, I look at my friends, I look at my community. और कोई नहीं करेगा तो ठीक है यार, कृष्णा के बाद चले जाएंगे। नो, पदम हरे मीन्स शेल्टर ऑफ ओनली कृष्णा, नॉट अ बैकअप कृष्णा। Krishna, either you or no one else. That is called Padam Hare. And what Parikshit does, he sits at the bank of Ganges and listen to Sukdev Goswami speak Bhagavatam. He does not waste time in sentimentality. Oh Krishna, आपने मुझे वूम में आके बचा लिया था, यहाँ पर आपको क्या हो गया है? आप थोड़े से बुढ़े हो गए हो क्या हो गया आपको, मतलब व्हाट हैपन टू यू, व्हाट हैपन टू यू कृष्णा? उस समय तो बचाने आ गए थे, अभी मेरे को वो श्राप दिया, उसके श्रृंगी का मुंह नहीं बंद कर सकते थे? नो, कृष्णा की मर्जी है, नो सेकंड ऑप्शन, नो प्लान बी। पता है हमारे साथ क्या है? हमारा ना कृष्णा नॉट इवन इन प्लान बी, हमारा कृष्णा इज प्लान जेड। और अगर उसके बाद भी कुछ होता है ना, तो वह है हमारा कृष्ण लास्ट लास्ट रिजॉर्ट। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना पैसा, रुतबा, हमारी खुद की ईगो, एंड एंड में आता है कृष्णा, है ना। ये जो है, दिस इज द ओनली इशू दैट वी आर फेसिंग, है ना। अब ये ही डज नॉट रन बैक। अब ऐसा नहीं था कि परीक्षित कुमार को पता चला कि 7 दिन बचे हैं, तो बोले एक काम करता हूँ, शेफ को बुलाता हूँ, उसको बोलता हूँ मेरे को जो भी 7 चीजें जो सबसे अच्छी बनी है, रोज के रोज मुझे 7 3 जा 21 21 मील्स मेरे को खाने हैं। तो एक काम कर, तू ये 21 मील्स जो मेरे फेवरेट है वो मेरे को बना के खिला नेक्स्ट नेक्स्ट 7 दिन में। ही डिडंट से दैट। he did not even he did not even eat or drink. He did not even get up from his seat for 7 days and 7 nights. He was just constantly listening. That is called Padam Hare, taking shelter of that, you know. गजेंद्र के साथ क्या हुआ? गजेंद्र, when he was fighting, oh Lord I surrender, उसने जब तक 1000 साल तक he tried his best, you know. And 1000 साल के बाद he just remembered something, picked up a flower and said, Lord I surrender. लॉर्ड भागे भागे आए बिना चप्पल पहने, गरुड़ को बोलते हैं टेक मी देयर, एंड गरुड़ को क्या बोलते हैं, ही वॉज अपसेट एट गरुड़ की, भाई यू आर टू स्लो, मेरा मेरा जो भक्त है ही इज इन डेंजर एंड यू आर फ्लाइंग स्लो। एंड गरुड़ इज नॉट एन ऑर्डिनरी बर्ड, ही फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ माइंड। इवन देन कृष्णा वॉज अपसेट बिकॉज कृष्णा, एंड क्या हुआ, बाय द टाइम दे रीच्ड देयर, लाइक विच वॉज हाफ अ मोमेंट, कृष्णा जम्प्ड फ्रॉम, वो वहीं से सुदर्शन चक्र फेंक सकते थे, बट कृष्णा जम्प्ड फ्रॉम गरुड़ा एंड थ्रू द सुदर्शन चक्र। व्हाई? बिकॉज दैट मोमेंट गजेंद्र हैड ओनली वन प्लान, कृष्णा। ऐसे नहीं बोला गजेंद्र, एक काम करो कृष्णा, या तो आप आ जाओ, या मैं क्या करता हूँ, इंदिरा को भी मैंने लगाया फोन, इसको भी मैंने भेजा एक मैसेज व्हाट्सएप, इसको भी कर दिया। एक्चुअली मैंने तो ना अपना फेसबुक पे स्टेटस ही डाल दिया कि आई एम डाइंग, कैन समवन हेल्प, तो आप भी उसमें आ जाओ अगर आपको आना है तो। ही डिडंट से दैट, ही डिडंट से मे बी यू, ही सेड ओनली यू, एंड दैट इज कॉल्ड पदम हरे, यू नो, जस्ट शेल्टर, है ना। सो अब हम लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया, व्हाट डज इट मीन फॉर अस राइट नाउ, व्हाट इज द प्रैक्टिस नाउ, व्हाट इज द प्रैक्टिकल टेक अवे? प्रैक्टिकल टेक अवे इज, वी डोंट नो दैट वी हैव 7 days or 70 or 70 years, we don't know. So what the message is, do not wait for a curse to surrender, do it now. हम लोग तक्षक का क्यों इंतजार करें? We need to surrender now. When Krishna organized this whole pastime, he was trying to tell us, भैया you don't have to wait for तक्षक, हमारे पास तो है ही, आएगा ही, तक्षक तो आएगा, whenever whoever is born he has to die, लेकिन हमें ये नहीं पता कब आएगा। सो डोंट वेट फॉर अ तक्षक टू अपीयर, क्योंकि क्या होता है कई बार व्हेन द तक्षक विल अपीयर ना, इट विल बी ऑलरेडी टू लेट फॉर अस। सो वी हैव टू डू द सरेंडर नाउ,
तभी तो कृष्णा बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरा, सिर्फ मेरा शरण लो तुम, सब कुछ छोड़ के। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मुक्त संगा परम हरे। कई बार लोग कहते हैं कि यार एक बार ना मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, देन आई विल बी सीरियस। एक बार मेरा बच्चा ना अपना खुद खाना खाने लग जाए, आई विल बी सीरियस। मैं भी सोचता था ऐसा। मेरा बेटा हाथ से खिलाते, भाग भाग के खिलाना पड़ता था। अब नाउ ही इज 8 years old, नाउ ही कैन ईट बाय हिमसेल्फ। लेकिन डू आई हैव मोर टाइम? नो आई डोंट, है ना। सो व्हाट वी शुड डू इज, नो, डजंट मैटर व्हाट्स हैपनिंग, डू इट नाउ। व्हेन आई एम ओल्ड आई विल बी सीरियस, नो, डू इट नाउ। नारद मुनि के साथ क्या हुआ? नारद मुनि, he was just a servant boy, पहले पिछले जन्म में he was just a boy of a maid servant, है ना। तो mother did not even know who's his father was, है ना। And then because she served those sannyasis for chaturmas, और उसने भी अपने उनको सर्व करा, and because his only shelter was his mother। जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ गए, 2 दिन में उनकी माँ को सांप ने काट लिया, शी डाइड। नाउ ही हैड नो वन इन द होल वर्ल्ड, वेरी स्मॉल बॉय, 6 7 years old, because he served sannyasis for 4 months। he realized वो किस डायरेक्शन में गए थे, अच्छा they went north, I'm gonna walk north। he turned towards north, start walking। that is, so that was his turning point, that was a curse। Mother is only shelter that he thought he had died, and then he became Narad Muni, he became so focused। हम लोग क्या करते हैं आप सोचो, हमें लगता है ना हम कब का वेट करेंगे, हमारी जब हमारा जो फोन है, फोन रात को, पूरी रात फोन को चार्ज करते हैं ताकि दूसरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होए, है ना। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइफ फाइनल एग्जाम, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट मिनट में अभी थोड़ा सा चार्ज कर लूं यार, कैसे चार्ज कर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम। आपको पता है लास्ट टाइम में जो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, क्रैम करने की कोशिश करते हैं, इट डजंट हेल्प। सो लेट्स नॉट बी स्पिरिचुअली इररिस्पॉन्सिबल, डू इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, यू नो। सो Narad Muni was reborn as a great Narad Muni because everything was gone. There was a story, Krishna, this is not written in our scriptures, it's a क्या बोलते हैं, कोलोकियल स्टोरी है ना। लोग जो लोकोक्ति जिसको कहते हैं ना, उसमें लिखी हुई एक स्टोरी है, जिसमें कृष्णा और अर्जुन, दे वेंट, अभी ऐसे ऐसे पैदल पैदल चल के घूमने जा रहे थे, और फिर जंगल में घुस गए, थोड़ा सा रास्ता भटक गए, उनको बहुत प्यास लग रही थी। उनको एक कुटिया दिखी, वहां पर गए, वो एक बुढ़ी सी अम्मा थी, उन्होंने देखा, अरे वाह, दो बड़े सुंदर से लोग हैं दो, अच्छा आप राजा हो क्या? तो उनको उनसे पूछा, अर्जुन से, हाँ। बोले मैं आपकी सेवा, उन खूब उसकी सेवा करी, खूब अच्छे से खिलाया पिलाया। देन उसने बोला आपको कुछ चाहिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की मैंने सेवा कर ली, मैं तो तृप्त हो गई। तो उन्होंने पूछा आपका कौन है मैया यहाँ पर? बोले मेरा कोई नहीं है, एक ये मेरी गाय है, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। बोले माइया कुछ ले लो। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो वो दोनों चले गए। तो थोड़ी दूर पे जाए, कृष्णा मुड़े, उन्होंने ऐसे उंगली करी, तो सिर्फ एक ही एसेट थी उस लेडी के पास, वो थी उसका गाय। गाय मर गई तुरंत ही। द गाय फेल डाउन and died. And Krishna turned around and started walking. Arjuna got bewildered. What happened, man? आपने, I mean, you killed a cow? तो कृष्णा ने बोला, नो नो नो, आई डिड नॉट किल द काउ, आई गेव द काउ मोक्षा। सो उन्होंने बोला, बट आपने अभी अभी सुना है, दिस लेडी हैज नथिंग अदर देन द काउ। एंड कृष्णा सेड दैट्स द ओनली अटैचमेंट दैट इज हिंडरिंग her to go back home, back to Godhead. So I took away that barrier. So think about how many barriers do we have in our life between us and Krishna, and how desperate are you for those barriers to disappear. Make the best use of bad bargain. You know, Srila Prabhupada writes, he made the best use of bad bargain.
हम लोगों को क्या करना है, ये जो मेड द बेस्ट यूज अ बैड बार्गेन, वी शुड इनग्रेव इट अपने ना हर जगह लिखनी चाहिए। मेड द बेस्ट यूज अ बैड बार्गेन, हमारे पास वी हैव बीन डेल्ट रॉन्ग कार्ड्स, वी नो दैट, वी आर बोर्न इन कलयुगा, ऑलरेडी वी हैव रॉन्ग कार्ड्स। How can we make the best use of bad bargain? This is what we need to ask now, right now, not tomorrow, not the day after tomorrow, not when हमारे जब हमारे सिर पे तलवार लटक रही है, तब तो हर कोई हाय अल्लाह करता है। द आइडिया इज कि व्हेन यू कांट सी दैट तलवार आपके लटकी हुई, फिर भी यू कैन एक्चुअली से हे कृष्णा, दैट इज कॉल्ड भक्ति, I दैट was इज about, Prabhuji, I was about to say, not Hi Allah, Hi Krishna, Hi Krishna. No, thank you. Actually, the meaning of Allah is all powerful. And Krishna's one of the qualities of Krishna is he's all powerful. So when they call Allah, they're actually telling the name of Krishna only. So, so what is the what is the best use of the bad bargain? हम लोग कलयुग में पैदा हुए हैं, मटेरियल बॉडी है, हमारे पास फोन है, कौन सा फोन है? स्मार्टफोन है। The only thing that is smart in the house is this phone. Everyone else is dumb. Have you heard of this? The only smartest thing is this phone is the only smart thing. जिसके घर में स्मार्टफोन है, that's the only smartest thing they have. That's the only smartest thing exists. Everything else, everyone else is dumb because it makes you dumb. Actually, hearing and chanting is the best use of the bad bargain. अभी क्या है कलयुग में, क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति कलो एव नास्ति गतिरन्य था। अभी क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, है ना? रामायण में देयर इज अमेजिंग लोकोक्ति, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ एक ही आधार है, देर इज ओनली वन सेवियर विच इज नाम, हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, और कैसा है ये नाम? सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। किससे पार निकल जाते हैं? इस जन्म मरण के बंधनों से पार निकल जाते हैं। वी गेट आउट ऑफ दिस एंटेंगलमेंट ऑफ दिस birth, age, old age and disease. How? Sumira Sumira, when we chant the holy name, and when we turn, because the way we chant the holy name, that will become the living a life of that will create us to become to live a life of service, and then in turn it will turn our sufferings into surrender। हमारी जो सफरिंग है उसको सरेंडर में कैसे कन्वर्ट करना है। आदमी जब कॉर्नर्ड हो जाता है ना, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, विच इज अ ग्रेट थिंग। उस दिन भी, उस समय भी कोई अगर भगवान पर टर्न कर ले, दैट्स गुड, लेकिन व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर दैट? है ना? परीक्षित कुड हैव कंप्लेंट, परीक्षित महाराज के पास इतनी ताकत थी, ही वाज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही कुड हैव जस्ट काउंटर कर्स्ड इट, है ना? लेकिन व्हाट ही थॉट, नो इट कांट बी ए कोइंसिडेंस, यू नो। और सोचो किसी के गले में आपने मरा हुआ सांप डाल दिया, आप वो ये भी बोल सकते थे, यार तू एक काम कर श्रृंगी, तू मेरे गले में दो दो सांप डाल दे, तेरे को प्रॉब्लम है ना, दो डाल दे मेरे, है ना? या मेरे मुंह पे कुछ लगा दे, मुंह काला कर दे मेरा, कुछ भी कर दे, है ना? लेकिन व्हाट इज डूइंग इज फॉर दैट, जो सजा थी ना, इट्स नॉट इक्विवेलेंट। मौत की सजा वो 7 दिन में, और किसकी मौत? द लास्ट राइचियस एम्परर ऑफ दिस यूनिवर्स इज गोना डाई बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ ए ब्राह्मण पुत्र, है ना? दैट वाज द डाउनफॉल ऑफ ब्राह्मणस, दैट टाइम वाज द डाउनफॉल ऑफ ब्राह्मणस, है ना? सो अभी सेम चीज द्रौपदी के साथ क्या हुआ? द्रौपदी व्हेन शी वाज गेटिंग डिसरोब्ड, पूरे समय खूब चिल्लाई, वो अपने पतियों के पास गई एक एक करके, एंड शी न्यू हाउ पावरफुल दीज पीपल आर। देन शी वेंट टू ऑल द अदर वन, शी वेंट टू हर फादर इन लॉ और cousin father in law, she went to Bhishma Pitama, nobody could help, and she was in so much misery, and she was holding on tight to her sari when she was disrobed, getting disrobed, and then when she realized, no, I can't save myself, only Krishna can. Until she was trying to hold on to herself, Krishna didn't come. As soon as she raised her hand like this,
Krishna came in the form of that sari. You know, Richa Mataji, you have a question? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Prabhu, you said it was the downfall of the Brahmanas from that point Yes. onwards. Was this That's, something that again was predestined sort of a thing? Why were Brahmanas having a downfall? Because they're supposed to be up, yeah. always. Good question. So actually, Kali Yuga में है ना, Kali Yuga is where a lot of things will go wrong. So when I say Brahmanas ka downfall, I'm not talking about the Brahmana community as a Brahman community. Downfall of um, the people who are proud. उस समय क्या था, ब्राह्मण क्या होता था, ब्राह्मण मीन्स इट्स नॉट द सन ऑफ अ ब्राह्मणा इज नॉट ऑलवेज ब्राह्मणा, है ना। श्रृंगी वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड। सो आप सोचो 11 ईयर ओल्ड के पास इतना तप है कि ही कुड जस्ट कमंडल में से एक हाथ में पानी लिया एंड ही किल्ड द मोस्ट पावरफुल एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड इन 1 सेकेंड। इतना पावर। सो ये जो पावर थी ब्राह्मणों के पास, इस पावर का गलत यूज करा श्रृंगी ने, बिकॉज श्रृंगी डिड दैट आउट ऑफ प्राइड। और इफ यू नेक्स्ट क्लास Egoism. में आई विल शेयर हाउ मच ही कर्स, जो जितना बुरा बुरा परीक्षित महाराज के लिए उसने बोला, दैट वाज द डाउनफॉल ऑफ ब्राह्मण कम्युनिटी। दैट मीन्स एनी पीपल हु आर प्राउड ऑफ देयर आइदर देयर बर्थ और देयर इवन गुण और कर्म। अब ब्राह्मण का पहला वन ऑफ द थिंग्स दैट ब्राह्मणा क्वालिटी हैव इज क्षमा। क्षमा, दमा, तितिक्षा, आर्जव, ये सारी क्वालिटीज हैं ब्राह्मण की। उसमें क्षमा ही नहीं करा उसने। ही वॉज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ कि मेरे पापा की कैसे इंसल्ट कर दी। सो व्हेन दे से ब्राह्मणों का वो डाउनफॉल शुरू हो गया, व्हाट डज दैट मीन, इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। तो उसके बाद क्या होगा, ब्राह्मण उसके बाद जो ब्राह्मण हुए, दे वर नॉट प्योर ब्राह्मणास, बिकॉज ब्राह्मणत्व का जो कलयुग में ब्राह्मणत्व होना थोड़ा सा मुश्किल ऑलरेडी है ना। तो जो लीनिएजेस आ रही थी ब्राह्मणों की वो सारी टूट गई। क्योंकि पहले क्या होता था, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का बेटा जो होता था अपने आप ब्राह्मण इसलिए बन जाता था क्योंकि उसका ऐसा माहौल मिलता था, उसके अपने आप गुण वो आ जाते थे, है ना। लेकिन अब कलयुग का प्रभाव आएगा तो वो गुण नहीं आएंगे। एंड दैट्स वाई हम जैसे कहते हैं ना, एक आदमी कीचड़ में है तो गंदा होगा ही होगा। लेकिन हम लोगों को एज ए डिवोटी, हम लोगों को कीचड़ में रहना है, लेकिन हमें कमल के जैसा रहना है। कमल क्या होता है, कीचड़ में रहता है लेकिन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, नथिंग अटैचेस ऑन टू द सेल्फ। सो डाउनफॉल जो है ना, इट वॉज एन एक्चुअली चॉइस ऑफ पीपल। एंड दैट्स व्हाई इट इज सैड कि ब्राह्मणों में यहाँ से शुरू हुआ था एक्चुअली। सन्यासियों वाला जो डाउनफॉल था वो तब शुरू हुआ था व्हेन इंद्रा बिकेम अ सन्यासी टू स्टील अ हॉर्स इन द सेक्रिफिशियल अरीना ऑफ महाराज पृथु। तो वो सन्यासी का रूप बना के आए और वो घोड़ा चुरा के ले गए। तो उनके बच्चों ने सोचा अभी हम इसको मार देते हैं, लेकिन देखा रहे तो सन्यासी का वेश बना रखा है, तो सन्यासी में हम लोग हथियार नहीं चला सकते, तो जाने दिया उनको, है ना। सो दैट्स व्हाट ही डिड इंदिरा। सो उस समय कहते हैं दैट्स हाउ द सन्यासीज, जो सबसे पहले पाखंडी सन्यासी थे वहां से शुरू हुआ, इंदिरा ने शुरू करा वो। फिर नाउ इफ यू गो आउट इन यू लुक एट इट, देर आर सो मेनी पाखंडी सन्यासीज, दे आर वेयरिंग saffron robes, and they have completely different agenda, you know. There was this person which I really used to like before, and now I despise him, is and I'm openly saying this, and I don't know whether you guys maybe follow him, but because this is a Bhagavatam, it needs to be cut throat as well. So his name is Osho. He was one of the most derogatory person. And like, Osho's thing is something that you I have told my people to delete the feeds from YouTube if they have ever watched him, because his thoughts are so contaminated. वो कहता है कि you should have relationship with multiple people, इतना करो कि एक दिन तुम्हारा ना सारा इच्छा ही मर जाए, देन यू विल बिकम मोक्ष। कहने का मतलब है, अगर आपको एक आग बुझानी है तो उसमें पेट्रोल डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आग अपने आप बुझ जाएगी। इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल।
stupidity है. And that's why some of these people, they're taking other people to the mouth of hell, and they are going into hell for eternity, not eternity, like many 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 lifetimes, because such a, खुद आप गिर रहे हो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इफ यू आर टेकिंग ओनली योर सेल्फ, बट इफ यू आर टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग यू, इट इज सच अ डिसर्विस. अगर मेरे बेटा, सपोज माई सन, कोई मेरे सन को लेके चला जाता है यहाँ से, ठीक है, सपोज मेरे 5 6 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को कोई ले गया, एंड दैट पर्सन खुद काई खाई में गिर गया और मेरे बच्चों को भी अपने पीछे पीछे गिरा दिया, हु वुड आई कर्स? आई वुड कर्स दैट गाय हु हैज डन दिस, है ना. एंड अगर मेरे पास पावर होगी, आई विल मेक हिम सफर, because my son, my kids, there he's taking away my kids from me. My kids were trying to come to me, now this guy is distracting them, taking them somewhere else, and खुद भी मर रहे हैं, लोगों को भी मार रहे हैं. So we have to be very very careful who we listen to. Please don't listen to anyone and everyone on YouTube. Please, please, I sincerely beg you, I humbly request you, please don't listen to anyone and everyone, because some of these people, they are so called, they have amazing orator. हमारे भागवतम में लिखा है, they will be amazing orator, like um, उसके there will be crocodile in disguise of rabbits, like bunnies. They look like bunnies, but they are crocodiles. They will devour you completely. खुद तो जा ही रहे हैं, they will devour you as well. So that was the reason why it said that तब से ब्रह्मणत्व का वो शुरू हो गया नीचे, है ना. Prabhuji, I was watching something हाँ, yesterday, a movie based on true events, which was about Asaram Bapu, his yeah. his story, what happened. Hmm. So the lawyer at the end shared a beautiful religious story. Why after Ravana's death, Ravana kept on praying to Lord Shiva, and Lord Shiva was not listening to him. And then Parvati Mata went to him and said, like, he's such a big devotee of you, and why are you not forgiving him? Hmm. He's after all the he died obviously after he died. So Hmm. he said in a very beautiful way. He said, I'm probably not going to be able to put it in. I'm just summarizing it. हाँ. He said, I would have forgiven his act of doing what he did. सीता माँ का हरण करने के लिए मैं शायद उसको फॉरगिव कर भी देता अगर वो रावण बन के करता. Hmm. बट उसने साधु बन के सीता Yeah. माँ का हरण किया. He basically put a bad name to all the community of the sadhus people. The trust has been broken. So Yeah. I cannot forgive him for that. And hence Yeah. he will never get forgiveness. So yeah. So well said on that point कि किसी को भी Yeah. ऐसे Yeah. So we have to have two ways of looking at this. Is पहली चीज तो है कि we should not listen to anyone and everyone, because मैं आपको बताता हूँ, right now we are trying to achieve the goal of गोलोक वृंदावन. सपोज एक ट्रेन जा रही है, if I want to go to city, है ना, I have to sit in a train to go to city. But if I go and sit in a train that is going to Ballarat, I will not reach city, no matter how beautiful that train is. No matter how many facilities it has. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, there are some people who are amazing, they're amazing orators, like really good. When you listen to them, like, oh my goodness, they are amazing. But do not fall into that trap, because what happens is, at the end of the day, I was following one person, I'm not going to name him, but I was following this one person, and at the end of the day he said, we are all God. You are God, I am God. You just don't know, I know. तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन रीड राइट नाउ, लाइक, एंड इन एग्जांपल क्या देते हैं आपको, देखो एग्जांपल भी बताता हूँ, एग्जांपल इतना जबरदस्त एग्जांपल है. सपोज ये कप है, ठीक है, ये मिट्टी का कप है, इसके अंदर हवा है, इसमें खाली है, ठीक है, अंदर हवा है, और मैंने इसको ढक दिया, तो इसके अंदर हवा है, इसके बाहर भी हवा है. अगर मैं इसको तोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये अंदर वाली हवा बाहर वाली हवा में विलीन हो जाएगी. इसी तरीके से हम, ये अंदर वाली हवा है, ये बाहर वाली हवा भगवान है. जैसे ही हमारा ये शरीर टूटेगा, हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, हम वही बन जाएंगे, वही वही जो फोर्स है, वही हम हैं, वही तुम हो. अब वो सुनने में ऐसा लगता है, माय गॉड क्या बात बोली है यार,
घड़ा टूट गया, उसमें से हवा निकल के सब में विलीन हो गई। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ साइंटिफिकली, ठीक है, दिस इज अ साइंस 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 पर्सन इन मी। मैं क्या करता हूँ, इसमें जो हवा है ना, इसको मैं केमिकल रिएक्शन से करके उसमें ऐसा कर देता हूँ कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एयर विल बी ब्लू। जब मैं इसको छोड़ूंगा, वो मॉलिक्यूल ब्लू ही रहेंगे, वो व्हाइट नहीं हो जाएंगे। हाउ कैन यू से विलीन हो गया? विलीन तुम्हें दिख नहीं रहा है तो तुम सोचते हो विलीन हो गया। यू कांट सी इट नेकेड आई। एयर मॉलिक्यूल इज एयर मॉलिक्यूल। एच, ये जो एयर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन O2 है, O2 यहां से निकली, वो O2 का मॉलिक्यूल ऐसा ही है। वो आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब थोड़ी मिल गया कहीं पे जाके। एंड देन दे से कि भगवान का कोई रूप हो ही नहीं सकता। अरे, तुम्हारा और मेरा रूप हो सकता है, भगवान का नहीं हो सकता? भगवान हमसे भी नीचे हैं क्या? आई मीन, लॉजिकली भी नहीं समझ में आता है। एंड देन पीपल कम अप विथ सच, एंड दे व्हाट दे विल डू इज दे विल टेक यू टू अ पाथ where you will actually go somewhere where there is no return. I mean, no return in any time soon. मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम भटकते रह जाएंगे हम लोग। इसीलिए कहते हैं, देखो, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम सारे शास्त्र पढ़ सकें। तो क्या करना चाहिए? वी शुड जस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन and get out of this place by being smart, not by being like, सारी ट्रेन, एक काम करता हूँ, एक रिसर्च कर लेता हूँ। अगर रिसर्च क्या करनी है, अच्छा, एक रिसर्च करता हूँ कि कौन सी ट्रेन मुझे सिटी लेके जाएगी। ठीक है, आपने रिसर्च कर ली। अब रिसर्च कर ली तो वो इसी ट्रेन में बैठो ना जो सिटी लेके जाएगी। अब आप उस ट्रेन में क्यों बैठने को तैयार हो जो कहीं और ले जा रही है, जस्ट बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल? अरे देखो, एकदम ब्रांड न्यू ट्रेन आई है, इसमें इसमें ना फ्री फूड भी है। अरे यार, व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज नॉट फ्री फूड। Purpose is to go back home, back to Godhead. And that's why this stupidity. So what these people do is, वो तो जा ही रहे हैं अपने नर्क में, लोगों को भी लेके जाएंगे। बोले हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना? अब व्हाट हैपेंस विद दैट? अब इसको, इसका दूसरी साइड देखो। जब द्रौपदी के साथ क्या हुआ, द्रौपदी व्हेन शी एक्चुअली गेव अप, कृष्णा केम। यू नो व्हाट द्रौपदी सेड? केशव, ब्रिलियंट, हाँ, यू टोल्ड मी, मतलब इतनी बड़ी ईगो, हाँ, मतलब जब तक मैंने दोनों हाथ नहीं उठाए तब तक तुम आए नहीं, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तो कृष्णा बोलते बोलते यार उसको, क्या बोलते थे उनको, सखी। कहते, मैं कैसे आता, मैं कैसे आता जब तक तू मुझे बुलाएगी नहीं? तुम्हें तो कहता, मैं नहीं बुलाऊंगी तो तुम नहीं आओगे, ये क्या बात हुई? बोले, मैं तो वहीं खड़ा था, लेकिन क्या है कि तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है कि मैं किसी की फ्री विल में नहीं अड़ंगा डाल सकता हूं। ये मृत्यु लोक ऐसे ऐसे ही बना है, मैं नहीं इंटरफेयर कर सकता, इसीलिए मैं वहां खड़ा था। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग इन एंग्जाइटी कि यार ये कब मुझे बुलाएगी, कब मैं आऊंगा। एंड यू वर जस्ट रिलाइंग ऑन योर ओन हैंड्स, when you could not rely on anyone around you, you're relying on your own hands. मैं क्या करूं, मैं क्या करता, I was there. And that's what he's doing. हम लोग क्या कर रहे हैं? We go on YouTube. अरे वाह, 6 मिलियन लाइक्स, चलो ये देख लेते हैं। अरे यार, 6 मिलियन लोग जा रहे हैं कुएं में कूदने, तुम भी जाके कूद जाओ, है ना? दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अभी और सोचो, डिवोटी का कॉन्ट्रास्ट देता हूँ। व्हाट डिवोटी डज, डिवोटी को रशिया में उनको जेल में डाल दिया, ठीक है? अब जेल में चले गए तो पता क्या करा उन्होंने? दे स्टार्टेड प्रीचिंग इन जेल, लाइक फुल ऑन प्रीचिंग, लाइक हरि नाम। वो टेबल बजा बजा के हरि नाम कर रहे हैं। उनके हाथ वाथ तोड़ दिए जाते थे तो अपने ऐसे ऐसे, अपने यहाँ से बजाते थे, अपने ना एल्बो से हरि नाम की धुन बजा के देवल से हरि नाम, है ना? दैट इज कॉल्ड, दे डोंट केयर। देर इज अ वर्स इन there is a verse in Shrimad Bhagavatam where कौन बोलता है, हाँ, भगवान शिव बोलते हैं पार्वती को। ही सेज, व्हाट वाज द वर्स? नारायण परा सर्वे, न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। महाराज चित्रकेतु तो अपनी रानियों के साथ जा रहे थे, नीचे देखा कि भगवान शिव त्याग पे, है ना, रिनंसिएशन पे लेक्चर दे रहे हैं, और उनकी गोद में कौन बैठा है?
पार्वती माँ। और पार्वती माँ कौन है? साक्षात माया देवी गोद में बैठी हैं। वो किस पे भाषण दे रहे हैं? रेनन्सिएशन पे। एंड ही स्माइल्ड, ही लाइक वाओ, ओनली ही कैन डू इट, only Shiva can do something like this. And Shiva looked at him, he looked at, while traveling, they both looked at each other. Shiva smiled, he smiled. पार्वती माँ को लगा है मेरे मेरे पति की इंसल्ट कर रहे हैं। देन शी गोज, यू आर नॉट, यू डोंट डिजर्व टू बी हेयर, यू शुड, तुम्हारी, तुम मेरे पति को, पति की हंसी उड़ा रहे हो, तुम्हें पता नहीं वो कौन है। सो आई गिव यू अ कर्स कि तुम इस शरीर के लायक नहीं हो, यू शुड बिकम डीमन। देन उन्होंने बोला, ऐसे हाथ जोड़े, एंड देन ही लेफ्ट। एंड देन शी गॉट बिविल्डर्ड मोर। बोले यार, इसने तो ना तो मेरे को सॉरी बोली, ना ही मेरे से आर्ग्यूमेंट करा, कुछ भी नहीं करा, चुपचाप ऐसे करके जो आज्ञा माँ करके चले गए, ये कौन है? देन शिव जी बोलते हैं, नारायण परा सर्वे। जो नारायण परा होते हैं, जो भगवान नारायण के भक्त होते हैं, न को तश्चन बिबिते, बिबिते मतलब डर नहीं होता उनको, किसी चीज का डर नहीं होता है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, स्वर्ग में डाल दो, अपवर्ग मतलब मृत्युलोक में डाल दो, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, नरक में डाल दो, अपि तुल्याश्च दर्शनम, उनको हर जगह एक ही लगता है, उनको कहीं भी डाल दो, देल बी द सेम। जैसे ये हमने बोला ना, जेल में डाल दिया तो जेल में भी हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, जेल में भी चैंटिंग चल रही है। लोगों के पास तिलक लगाने के लिए वो नहीं था, तो टूथपेस्ट का तिलक लगाते थे, है ना। बीड्स नहीं होते थे, तो ब्रेड होती ना, ब्रेड को गीला करके उसमें छोटी छोटी उसकी गोलियां बना के उसको सुखाते थे, फिर उसमें छेद करके उसमें धागा डाल के उसके बीड बैग बनाते थे। देयर इज अ बुक कॉल्ड सॉल्टेड ब्रेड, यू शुड रीड इट, you know. Then these are Narayana para, and we need to become Narayana para, you know. So what is the par? Oh my goodness, 8 to 7, I'm so sorry. So what is it? Death is not our enemy. First thing, forgetful of Krishna is our enemy. Let go of material attachments, they only weigh you down. Take full shelter, not half. Plan B, plan C, nahi, full surrender. Fourth, hear Bhagavatam daily, because this is the voice of the Lord. But don't listen to anyone and anything on YouTube. ठीक है? ISKCON is the best bet. Live like Parishit now, so we are not surprised later. So we'll stop here. Granthra Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. I'm so sorry, I just completely lost track of time. Anybody has any comments, any question, anything anybody wants to share? प्रभु जी, हरे Yes, ma'am. कृष्ण। Hare Krishna Mataji. प्रभु जी, जैसे इसमें परपोर्ट में लिखा था ना कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और जो भगवान की भक्ति साथ साथ नहीं होती। पर मुझे जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक अगर आप हैं भी, अगर आप भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इट्स नॉट बैड। ऐसा क्यों? हाँ, वो इसलिए कहते हैं, what does that mean? If you're using the material, if you're using the Maya in the service of Krishna, that is the purpose of Maya actually. Like, you know, that is the epitome of Maya. For example, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, then we are not attached to Maya, then we are not in that path of, you know, materialism. Materialism का क्या मतलब होता है? आई वॉन्ट नेम फेम अडोरेशन, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, मेरे को ये भी चाहिए, मुझे को वो भी चाहिए, मुझे नौकरी भी चाहिए, मुझे छोकरी भी चाहिए, मुझे भगवान भी चाहिए, है ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे नाम शोहरत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो नहीं, एक्चुअली अगर किसी के पास नाम शोहरत है, अगर आपको नाम शोहरत कमानी है क्योंकि यू वांट टू प्रीच फॉर कृष्णा, देन गो अहेड डू इट। जय शेट्टी इज सच ए powerful personality. He's using his name and fame in the service of the Lord. ना उनके घर पे he has भक्ति वृक्षा जैसे चलता है उनके घर पे, and he preaches to who, like, you know, Will Smith, बड़े बड़े Hollywood actors, he's preaching to them directly, है ना. So if you want to use your name and fame for the service of the Lord, then you are not living a materialistic life, you're still living spiritual life, you're using your material opulence in the service of the Lord. That's what it means. अगर आपके पास पैसा है, पैसा इज नॉट ए बैड थिंग, लेकिन अगर उस पैसा को, अगर वो लक्ष्मी को आप नारायण की सेवा में नहीं लगा रहे हो, दैट मीन्स यू आर रावण, है ना. रावण ने क्या करा? रावण को सीता चाहिए थी, लक्ष्मी चाहिए थी, लेकिन राम नहीं चाहिए थे, दैट मीन्स ही वॉज रावण. अगर हम लोग सिर्फ हमें लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, दैट मीन्स वी आर एक्टिंग लाइक रावण, and that is bad. That two things cannot happen. But if you are using your material opulence in the service of the Lord, then you are not materialistic, that means you are in bhakti.
Make sense? Just mean we having the materialistic thing, but we are not attached. Detachment होना चाहिए. Yes, We yes, should we not be have, attached with materialistic we are thing. not attached to it, and we are using it just for the service of the Lord. If we use everything in the service of the Lord, that means we are not materialistic anymore. To the degree we Yes. are using everything in the service of Lord, to that degree we are in spiritual path. The same with the name chanting also, because people are living the both life simultaneously. With like they are chanting also, and they are going to Yeah, means materialistic and power and all, that is and okay. yeah, So okay. this is a very good question. I like that, Yashimata ji, because this is an amazing question. Because what happens is, then why do we tell people कि यार तुम्हें मीट खाना खाते रहो, दारू पीनी पीते रहो, बस चैंटिंग करना शुरू कर दो? उसका क्या रीजन? Hmm. Because what chanting is an amazing process. What it does is वो आपकी हमारी जो materialistic propensity है उसको transform कर देती है. आज से 10 साल पहले अगर कोई मुझसे मिला होता, बोलता है कि आई वुड स्टॉप ड्रिंकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, आई वुड जस्ट लाफ एट देम. पॉसिबल ही नहीं था. चैंटिंग से अपने आप पॉसिबल हो गया. कैसे? बिकॉज पुनर्दृष्टवा परम दृष्टवा निवर्तते. एक हायर टेस्ट आया, लोअर टेस्ट अपने आप चला गया. अब मुझे पता है कि आई एंजॉय मोर इन भक्ति, आई हैव मच मोर टू गेन इन भक्ति देन आई वाज सपोज टू गेन फ्रॉम ड्रिंकिंग. सो यस, नाम एक ऐसी चीज है जिसको आप कर सकते हो, भले ही आप मटेरियल लाइफ में हो कुछ हो, क्योंकि दैट विल ट्रांसफॉर यू फ्रॉम दिस बोट टू अदर बोट. रुचिता माता जी. Yes, so we Thank you, just thank you. wanted to यशी माता, share सॉरी about. सॉरी, एक सेकंड, एक Sorry, सेकंड. sorry. हाँ. यशी माता जी, आप क्या बोल रहे थे? अब मैं ये कह रही थी प्रभु जी, जैसे कि मतलब कि नाम चैंटिंग का कोई वो भी नहीं है ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बेड पे ही नाम चैंट कर हाँ, रहे हैं, कोई सोते फर्क नहीं समय भी पड़ता. कर रहे हैं, अच्छा ओके. नाम नाम अकारी बहुधा निधि सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरण ना काला. देर इज नो नियम और कुछ भी नहीं है. आप लिटरली, इफ यू आर इन अ टॉयलेट यू कैन चैंट. आप बीट मत ले जाओ टॉयलेट में, लेकिन यू कैन सिट ऑन टॉयलेट एंड यू स्टिल चैंटिंग. आई दिस कैन बी डू. हाँ, राइट. या या यू दिस कैन, कैन बी डू कि हाँ नाम से कर सकते हैं, बीस नहीं ले सकते हैं, बीस. लेकिन आई थॉट सो, मतलब मे बी आई कुड रॉन्ग कि बट वी शुड फॉलो द हिंदू रिलीजियस, मतलब एटलीस्ट नहा धो के पूजा करनी, वो सब नहीं करना चाहिए. पूजा, वो देखो चैंटिंग पूजा. आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप फिर कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं. आपने ठाकुर जी रखे हैं, उनको नहीं नहीं, हमने वो अलाव डिफरेंट है, वो डिफरेंट है. उसको हाँ कहते हैं वो चीज. पांचरात्रि का विधि. पांचरात्रि का विधि ओके. आपको फॉलो करनी हाँ. पड़ेगी. तो आपके घर में अगर डीटीज हैं तो ये आपको नहा धो के उनकी सेवा करनी है. अगर आप नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस. इफ यू आर नॉट सीरियस. एंड भी से ना कि हाँ ये जैसे भी है, हरि नाम केवलम, कलयुग में केवल नाम आधारा. हाँ, तो लोग यही बोलते हैं कि सिर्फ नाम ही तो नाम जैसे चैंटिंग कर मेरे रहे हैं, घर तो पे फिर कुछ डीटीज और नहीं है, करने के फिर. हाँ. यशी माता जी, हाँ. मेरे घर पे डीटीज नहीं है ना. तो मेरे पास तो सिर्फ नाम का ही सहारा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है. लिटरली आई डोंट हैव एनीथिंग. मेरे पास फोटो है बस, और कुछ नहीं. तो मेरे पास तो ओके. कोई सहारा ही नहीं है. तो मेरे जैसे लोगों के लिए उन्होंने बोला है हरे नाम है. अगर जिनके हाँ. पास लड्डू गोपाल है, यू शुड मेक एन एफर्ट. आपकी बहुत जल्दी एडवांसमेंट होगी अगर आप, इफ यू मेक एन एफर्ट. बिकॉज कृष्णा क्या बोलते हैं? कृष्णा बोलते हैं उनको परफेक्शन नहीं चाहिए. उनको पता क्या चाहिए? उनको चाहिए कि भैया तेरा इंटेंशन है क्या. आप कम कर हम्म. पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका इंटेंशन है क्या उसको इंक्रीज करने का. दैट्स व्हाट ही इज लुकिंग फॉर. ही इज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग एल्स. है ना? प्रभु मैं भी पूछूं कुछ? एक से थैंक यू माता प्रभु जी, जी, हरे रुचिता कृष्णा. माता, यशी माता जी, आपका इज इट ओके? यस यस प्रभु जी, यस यस प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण. रुचिता माता जी आप पूछो, देन आशा आंटी. No questions, Prabhu. Just wanted to share आज morning class Bhagavatam में ना Prabhu हम्म. was sharing something to talk about like chanting importance. तो वो बता रहे थे कि इस युग में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने चैंटिंग को एज अ वेपन यूज किया है. लाइक इन हम्म. एवरी युगा वी सी राम जी ने बो एंड एरो यूज किया. फिर नरसिम्हा, जो नरसिम्हा देव थे, उन्होंने अपने नाखून. नेल्स वाला क्लॉज. वेपन यूज किया. फिर उसके बाद कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है. सुदर्शन तो दिस चक्र. युगा chanting is the weapon that we ब्यूटीफुल. can surpass, like we can cross the ocean of miseries and go back to Godhead. So which ब्यूटीफुल. is like very beautifully explains. I wanted to share that when you spoke about chanting हमारे अनर्थास को अपने आप निकाल देती है. We don't have to really focus on anarthas, but we have to focus on the importance of chanting. ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. That's ब्यूटीफुल. very थैंक यू माता जी, दैट्स अमेजिंग, आई लव इट. Mhm. थैंक यू. हाँ Thank you, ठीक है, Prabhu. आपका क्या बोल रहे थे आप? प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी,
आपने बोला ना कि तुलसी की माला नहीं लेके जानी चाहिए, है ना? हाँ, पर जो टॉयलेट में लोग नहीं ले जानी चाहिए। जी, हाँ, और जो गले में पहनी होती है उसका क्या? वो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि वो चल वो, जाती हाँ वो चल जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि जो बीड बैग हो ना, जिस इट्स इट्स बेसिकली फॉर नथिंग एल्स, इट्स बेसिकली हाइजीन और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, है ना। अब हम जैसे हम लोग टॉयलेट भी जाते हैं, लाइक इफ यू गो नंबर टू, यूजुअली हम्म एज ए डिवोटी वी शुड हैव शावर आफ्टर दैट, स्ट्रेट हम्म अवे, है ना। हम्म तो तुलसी तुलसी अच्छा, अपने गले में से कभी नहीं उतारते हैं, तो हम वी हम्म स्ट्रेट अवे वी गो एंड हैव शावर। हम्म बट ऑब्वियसली जो हाथ में माला है वो सिर्फ हाइजीन के हिसाब से वहां नहीं ले आते हैं, गिर गई कभी कुछ हो गया तो इट्स नॉट, दैट्स द ओनली रीजन। क्योंकि प्रभु एक बार मेरे गले में ही रह गई, मैंने गले में वही पहन रखी थी पूजा करते करते, जैसे वो हाँ, पहनी, वो कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो फिर एक्चुअली, उसको मैंने गंगा जल से छिड़क दिया नहीं वो उसके उसके ठीक है, वो ऊपर। ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ना ले जाएं ना, टॉयलेट, बाकी दैट दैट डजंट मैटर। देखो ये भगवान ना, भगवान वहां डंडा लेके नहीं बैठा है कि अभी किसने गलती करी और फटाक से एक लगाया, ऐसा नहीं है। वो आत्मा ही डंडा मार देती है उसी टाइम पे। हाँ, तो हम लोग नहीं, भगवान क्या एक्चुअली हम कहते ही लोग को हैं? कौन बोला ये? क्या कहा? मैं बोली प्रभु जी कि हम ही लोग को लगता है कि ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो गई, अच्छा ये हुआ इसलिए भगवान हमने कुछ गलती किया होगा तभी नहीं ऐसे नहीं हुआ है हमारे साथ। नहीं नहीं ये भी कई बार, होता है, ये भी होता है, मोस्ट मैं बड़े मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे साथ अभी हो रहा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट आर, क्या बोलते हैं, अभी के कर्म, है ना, हमारे पुराने कर्म है ये यूजुअली। तो इतनी जल्दी हर चीज का रिजल्ट नहीं मिलता है, रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं आता है, कई चीजों का रिएक्शन आने में बहुत बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोगों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अभी रिसेंटली भक्ति में आने के बाद कुछ करा है जिसके कारण ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में आने के बाद हमारे पाप ऑलरेडी कम हो जाते हैं, तो जो पर भी हमें प्रभु मिल रहा है वो पुराने के कारण मिल रहा है, और वो हम्म टोकन में ही मिल रहा है। 1,000 मिलना चाहिए था हमको, 1,000 निकलना चाहिए था, 1 रुपया जा रहा है, बस ऐसा हो रहा है। So, बस प्रभु, बस यही रहता है प्रभु, हमारा तो जाने वाला रास्ता है, तो प्रभु बस अगले जन्म में आपके चरणों की भक्ति चाहिए, यही मांगती हूँ। मेरे चरणों साथ की में नहीं जो, मांगो, भगवान के चरणों की मांगो। हाँ क्योंकि क्या मतलब है, उन्हीं के शिला चरणों। प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, मैं तो क्या करता हूँ, आप बिल्कुल सही, मैं क्या करता हूँ, शिला प्रभुपाद के चरणों की मैं मानता हूँ, क्योंकि इफ आई आई नो फॉर ए फैक्ट दैट भगवान इज मोर happy when we serve their pure devotees. ये For ये me, the only, like my Guru Maharaj and my and Srila Prabhupada are the strength, because of that I speak. मूखम करोति वाचालम, मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है, मूकम, मूकम करोति वाचालम, मतलब मूक मतलब म्यूट, जो गूंगा ये होता है ना, गूंगे दूंगा। से भी आवाज निकल जाती है। हम्म। एंड मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम, पंगु, पंगु मतलब जो लंगड़े हैं वो भी पहाड़ हम्म क्रॉस कर जाते हैं ना, पंगुम लंगायते गिरिम, यत कृपा तम हम बंदे श्री गुरुम दीरिदारणम, ऐस वो हम्म कैसे हो सकता है, गुरु की कृपा से। तो ये जो मैं बोल हम्म रहा हूँ ना, हम्म इसमें गुरु और कृष्ण की, शिला प्रभुपाद की वहां से मर्सी डायरेक्ट आ रही है ना। ये भी सुना, जैसे हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। तो प्रभु अपने भक्तों को बिल्कुल सही, हम्म, अपने भक्तों अपने को ये अपने जैसा ही मानते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम्म, बल्कि तो वो तो कहते हैं कि मेरी सेवा मत करो, मेरे भक्तों की सेवा करो, दैट्स व्हाट हाँ, ही सेज। मैं उससे खुश होता हूँ। हाँ, जी, थैंक यू आंटी जी। चलिए, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल जय प्रभुपाद की जय। आप ठीक कुछ है। हरे बोल रहे हो कृष्णा। ऋचा जी? प्रभु ऋचा मुझे माता जी, हाँ मुझे कुछ पूछना है, बट लाइक व्हेन पूछो एवरीबॉडी पूछो, आराम फिनिश। से पूछो। नहीं नहीं प्रभु, इस ऑफ बीट क्वेश्चन है। नहीं, इट्स ऑल कोई राइट बात ना, नहीं, जो जिनको आना है वो आ जाएंगे। हाँ प्रभु, हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, हमारा जो मूवी सेशन है नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा की, तो वो कल सैटरडे को ना वो है, रक्षाबंधन है। आई डेंट रियलाइज, सो क्वाइट अ फ्यू पीपल आर नॉट एबल